Critics like Carol Gilligan have maintained that Kohlberg's theory conflates morality with an understanding of rules and justice while overlooking concerns such as compassion. And Gilligan believed the emphasis on impartially judging conflicts between competing parties overlooked the female perspective on morality, which tended to be contextual and derived from an ethics of compassion and concern for the other people. तो वही है कि उन्होंने कहा कि कोलबर्ग की जो थ्योरी थी वो उसमें थोड़ा सा ये फील किया गया कि उन्होंने कंपैशन नहीं लिया है कि बेसिकली एवरी ह्यूमन बीइंग लव्स अदर बीइंग, कंपेनियनशिप है, कंपैशनेट है, लेकिन मोरालिटी में उन्होंने कोलबर्ग ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा, मेंशन किया। एंड प्लस वुमन पर्सपेक्टिव्स के बारे में भी कोई बात नहीं हुई है। Kohlberg's methods were also criticized. The dilemmas he used were not always applicable to children at the age of 16 and under. For example, the Hinz dilemma presented above might not be relatable to children who had never been married. So Kohlberg focused on dilemmas more. तो बहुत ज़्यादा dilemmas भी थे. So basically conclude ये किया गया कि according to Kohlberg, the connection between religious beliefs and moral development is more apparent in the context of specific religious proscriptions rather than generally secular principles of justice. Although my study lacked sufficient data, it did reflect the results I expected to see based on Kohlberg's research. Our evidence of culturally universal moral stages then is also direct evidence against the view that the development of moral ideologies depends on the teachings of particular religious belief system. No differences in moral development due to religious beliefs have yet been found. Protestants, Catholic, Muslims, and Buddhist children go through the same stages at much the same rate. When social class and village urban differences are held constant. देखिए वही है कि हम जब रिलीजन की बात करते हैं तो उसमें भी हमें मोरल वैल्यूज ही बताई जाती हैं। तो बचपन से ही चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे बुद्धिज्म है, चाहे जैनिज्म है, तो वो सारे जितने भी रिलीजन्स हैं वो एक तरह की आपको गुड वैल्यूज, मोरल वैल्यूज ही आपके अंदर डेवलप करते हैं। तो ये जो थ्योरी कोलबर्ग की जो हमने की है, इसमें बेसिकली आप लोगों ने जब भी पेपर में लिखना है कि मोरल डेवलपमेंट क्या है, इसका मीनिंग क्या है, just hold on. Yes, तो आप लोगों ने सबसे पहले तो इसका मीनिंग जरूर लिखना है। तो हैमिंग की बुक में था द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस मोरल वैल्यूज, राइट? मोरल डेवलपमेंट इज द process in which the child acquires the values esteemed by his community, acquires a sense of right and wrong in terms of these values, learns to regulate his personal desires and compulsions so that when a situational conflict arises, he does what he ought to do rather than what he wants to do. So, moral development is the process by which a community seeks to transfer the egocentricity of the baby into the social behavior of the mature adult. तो वही है कि आपकी अपनी पर्सनल नीड्स हैं, डिमांड्स हैं, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं, जो आपकी पर्सनल नीड है वो आप करोगे या सोशली जो एक्सेप्टेबल है उसको करोगे। तो इसमें मोरल डेवलपमेंट जो आ जाती है, मोरल बिहेवियर आ जाएगा, मोरल कंसेप्ट्स आ जाएंगे। मोरल बिहेवियर में है कि बच्चा जो है वो कैसे मोरल बिहेव करता है, ये भी जो भी सिचुएशन है। मोरल कंसेप्ट आते हैं कि कौन से रूल्स होने चाहिए, कि किस तरह से बच्चे को बिहेव करना चाहिए, वो आ जाता है। ठीक है, तो हमने स्टेजेस की है जो कि कोलबर्ग ने दी थी। प्री कन्वेंशनल, जिसके अंदर था पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, और स्टेज 2 थी इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। फिर हमने किया कन्वेंशनल लेवल, जिसमें स्टेज 3 थी नाइस गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन। स्टेज 4 में था लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। फिर हमने किया पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसमें स्टेज 5 थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। सो मोरल डेवलपमेंट जो है बिल्कुल डिफरेंट स्टेजेस से पास होती जाती है। इन्फेंसी स्टेज में लाइक फ्रॉम बर्थ टू 5 इयर्स बच्चा जो बिल्कुल अमोरल होता है, उसे उसके अंदर कोई कॉन्शियस नहीं होती, उसे कोई सेंस नहीं होती क्या राइट है क्या रॉन्ग है। देन वो जैसे वो स्कूल में जाता है और बाकी अपने नेबर्स या बड़ा होता है, पेरेंट्स के साथ उसके वैल्यू सिस्टम समझ आता है। फिर जैसे लेट चाइल्डहुड स्टेज आती है 5 to 12 इयर्स,
उसमें भी जो बच्चा है वो थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू कर देता है, लेकिन फिर भी ईगोसेंट्रिक होता है, वो अपनी वैल्यूज को फर्स्ट रखता है। देन एडोलेसेंट स्टेज आ जाती है, जिससे उसकी बिल्कुल समझ आ जाती है क्या वैल्यूज है, सोसाइटी के क्या नॉर्म्स हैं, और वो थोड़ा सोशल होकर सोचना शुरू कर देता है। सो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं मोरल डेवलपमेंट में, वही फैमिली है, स्कूल, नेबरहुड, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, क्लब एंड कैंप एक्सपीरियंसेस, प्लेमेट्स एंड फ्रेंड्स, कल्चर, ठीक है, कम्युनिटी। सो फाइनली रोल ऑफ टीचर क्या है मोरल डेवलपमेंट में, या फिर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, तो उसमें आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा पर्सनल एग्जाम्पल ऑफ टीचर्स। तो जो टीचर है उनका अपना भी मोरल जो लेवल है वो हाई होना चाहिए, तभी वो अपने बच्चों को या अपनी क्लास में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको वो उस तरह की मोरल वैल्यूज उन पे इनकलकेट कर पाएंगे। तो बच्चे ये नहीं कि बोलने से सीखेंगे, वो कंडक्ट से भी सीख जाते हैं। देन प्रेजेंटिंग मोरल आइडियल्स, जितने भी मोरल आइडियल्स हैं वो सारे बताने चाहिए कि कैसे आपको ऑनेस्ट रहना है, ट्रुथ रखना है, ओबीडिएंट रहना है, कोऑपरेट करना है, जस्टिस करना है। देन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट हीरोज, जितने भी लॉन्ग हम देखें कि हमारे जो पुराने जो हैं जो हिस्ट्री उठाकर देखें तो उसमें जो भी बड़े बड़े काम किए हैं उनके बारे में बताना चाहिए। देन बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट मैन, तो बायोग्राफीज जैसे हैं बड़े जो मोरल पीपल हैं उनके बारे में, जो ग्रेट पीपल उनके बारे में बताना चाहिए। सेलिब्रेशन ऑफ डेज लाइक बर्थडेज और डेथ एनिवर्सरीज जो हैं रिलीजियस लीडर्स या सेंट्स या गुरुज की हैं उनके बारे में बताना चाहिए। अदर को करिकुलर एक्टिविटीज जो हैं लाइक जो भी को करिकुलर एक्टिविटी होती है वो स्कूल की एक तरह की बैकबोन होती है, तो उसमें सब बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। लाइक मॉर्निंग असेंबलीज होती हैं, मास प्रेयर होती हैं, ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती हैं। तो इस तरह से बच्चा एक करेक्टर और एक मोरल एजुकेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि पेरेंट्स, टीचर्स, एजुकेशनिस्ट, फिलोसफर्स, रिलीजियस लीडर्स ये सब ट्राई करें कि बच्चों को बिल्कुल राइट फ्रॉम द स्कूलिंग से लेके एडोलेसेंट और जब तक वो अडल्ट नहीं बन जाते तो उनका एक कैरेक्टर एंड मोरल डेवलपमेंट हो। सो इससे हमारी कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट फिनिश होती है, ठीक है।